sells us perfection, polished feeds, and instant success. But the reality, that's happening behind the scenes, in the middle of the mess, where there are no shortcuts and no witnesses. You're looking for answers in a world of static. You're looking for a signal. We are told to chase the dream, survive the hustle, and figure out on the fly what to do. But no one hands you the playbook when you actually fall apart. From navigating the chaos to mastering the comeback, this is how you handle it. Welcome to Season 2 of the Time Pass Theory. I'm the theorist, and this is the hard truth. आज हमारे साथ जिगर हैं. So we have a good amount of experience today in the room, if I can summarize it in a nutshell. आज जिगर हमारे साथ ऐसी चीज़ें कुछ शेयर करेगा, अपने experiences which are really going to be very informative for everybody. And this particular podcast is going to be a very interesting one, and it is going to also act as a guidance for those people जो start कर रहे हैं अपनी एक business after leaving a job. They dream big, they want to do better in life, and but they don't realize कि क्या आने वाला है and what are the various hurdles that they can get into. So welcome to the Hard Truth. This is season 2 of the Time Pass Theory podcast, and the Hard Truth series में जिगर हमारे साथ है आज, जो हमारा first episode इस season का जिगर के साथ है. Hi जिगर. Hi everyone. I know we are going to have a very good conversation today. Okay. So मैंने अपना career IT में start किया था, as most of the Indian guys we do in early 2000s. I started with a smaller company, joined TCS. I was lucky enough in TCS कि मुझे on site भेजा गया. I got different experiences in Australia, in Switzerland, in UK, in Belgium. But एक चीज थी हमेशा कि लाइफ में इंडिया में कुछ करना है, कुछ अपना खुद का करना है. ये जॉब इज नॉट समथिंग आई वाज मेड फॉर. सो ऑलवेज एक प्रोसेस था माइंड में, एक बैक प्रोसेस चलता रहता था कि क्या करे, कैसे करे. सो डिसाइडेड टू टेक अ प्लंज. तब थोड़ा मदर फादर भी अकेले हो गए थे, तो आई थॉट कि उनके लिए भी एक अच्छा हो जाएगा, मैं वापस उनके साथ ज्वाइन कर लूंगा, वहां से ही सब कुछ करूंगा, फैमिली के साथ रहूंगा. So you've worked in multiple countries, right? Yes. You are a very well traveled person. And by the way, for our viewers and listeners, Jigar is a close friend. We've known each other for many years together, and so I know we used to talk so much. And हम लोग जब भी मिलते थे, हम इतनी सारी बातें होती थी इसके पास. And I said, you got to put this story out for the world. And I know that he is very well traveled. He has worked for companies like Ford, right, Jigar? Yes. I work for Ford. That too, not in India, I believe. Yeah, it's in Australia. I work for Ford Motors. So yeah, in Australia. So let's start with a little background. Where are you from? And एक context देते हैं सबको, and then उसके बाद we will start your journey. So I am basically from Surat, from a family background जहाँ parents ने job की थी, फिर father started a business, but he started a business after I joined the job, so it was a transition for him and for us also. और उनका medical shop था, and then he started his own medical company. So it was, we could say that we are well off, but not ultra rich or something. But as a गुजराती हमेशा हम लोगों में एक रहता है कि भाई हाँ हम गुजराती है, हम तो
हम धंधा ही चलाएंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे। नौकरी नहीं कर सकते। Yes. ये बाय द वे ये जट्टों में भी होता है, पंजाब में ना हम लोग भी कई बार ऐसे सोचते हैं यार हम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द पीपल यार अपना काम अपना ही खोलेंगे अलग, तो ਅਸੀਂ काम नहीं कर सकते किसी के थल्ले। तो वही एक फीलिंग हमेशा हर गुजराती में बाय डिफॉल्ट होती है कि हाँ हमें ये नहीं करना है, हम अपना कुछ करेंगे। तो इनिशियली वो थॉट प्रोसेस था, तो इनिशियली बट एज डिग्री की है तो एटलीस्ट लोग थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा इसको भी इसके थ्रू कुछ नॉलेज गेन करते हैं, कुछ आइडियाज उठाते हैं, एंड देन यू गॉट अ चांस टू ट्रैवल द वर्ल्ड ऑन अ कंपनीज मनी। सो ये भी एक अच्छा था कि चलो कुछ नया देख के आते हैं, बाहर कुछ देख के आते हैं, तो एक वो स्टार्ट मिला था। एंड वी वर आई वुड से दैट आई एम इन दैट लकी फेज ऑफ इंडियन आईटी, जब हर किसी को इजीली जॉब मिल जाती थी, हर किसी को इजीली ऑन साइट भी की अपॉर्चुनिटी होती थी। सो most of my friends who were with me in college, they are already in, most of them are outside India. और हम ये किस ईयर की बात करें, किस साल की बात कर रहे हैं? मैंने अपना इंजीनियरिंग 2004 में कंप्लीट किया था। सो दैट वाज आईटी बूम काइंड ऑफ टाइम, जब जॉब्स आईटी की जॉब्स बहुत आई थी। इंटरव्यूज धड़ाधड़ चल रहे थे। हाँ, और यानी तब ऐसा आता था कि इन्फोसिस 300 लोगों को लेके जा रही है एक कॉलेज से, टीसीएस 500 लोगों को लेके जा रही है एक कॉलेज से। दैट वाज दैट टाइम। तो तब सबकी इजीली जॉब लग रहे थे, तो एवरीवन वाज क्वाइट हैप्पी, मनी वाज गोइंग फ्लोइंग गुड, बिकॉज आईटी में एज ऑलवेज वी नो दैट इट इज अ बेटर पेइंग जॉब्स, though there are struggles of IT separately, but still IT is a better paying opportunities. And जहाँ पे आप इतना यानी मेंटल वर्क करते हो, मेंटल फोर्स लगाते हो, बट इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग कि आपको धूप में खड़े रह के काम करना है और पैसा मिल रहा है। आप आराम की एक लाइफ जी रहे होते हो और पैसा आ रहा होता है, that to 5 days a week, not like others. So you have that comfort zone of yours. फिर आप जब वो comfort zone में बहुत दिन रहते हो, तो फिर आपको एज अ ह्यूमन टेंडेंसी यू फील लाइक यार ये क्या लाइफ चल रही है, एक ही तरीका का मोनोटोनस लाइफ चल, गेट बोर्ड। तो ये बोरियत कितने सालों बाद आनी शुरू हुई? सो फॉर मी बोरियत आना तो चालू हुई थी 4-5 साल, यानी 3-4 साल में आ गई थी, बट फिर 3-4 साल में बोरियत, फिर कंपनी ने मुझे बाहर भेज दिया, तो लाइक थोड़ा बोरियत कम हो गई कि चलो हाँ ठीक है, थोड़ा एंटरटेन करते हैं जिगर को। तो वहाँ काम किया, वहाँ बहुत अच्छे से बहुत काम किया। वहाँ पे फिर ये लगा कि नहीं। So where did you go? So where did you go then? पहले मैं गया था, I went to Australia first when I was a bachelor for 6 months. तब भी मैं फूड के लिए काम कर रहा था। Then I got a chance to go to Switzerland for some time. Again I was a bachelor at that time, जिसके लिए अभी भी वाइफ मुझे कोसती रहती है, but can't do much. And then got married, and then again went to Australia for 1.5 years. वहाँ से हम लोग UK चले गए 1.5 years के लिए. Then I went to Belgium for 4 to 5 months, and that time मेरी सिस्टर की शादी हुई. Parents got like तब तक सिस्टर उनके साथ थी, तो things were moving good. जब उसकी शादी हुई तो mom was थोड़ा सा कि अभी हम लोग अकेले हो गए, and she also get into that kind of mood कि we are not feeling good or I am feeling bit depressed, और थोड़ा सा तब मेरा भी वो चल रहा था कि तब मेरी बोरियत बहुत बढ़ चुकी थी, to be very honest, कि अब कुछ अपना होना चाहिए। बोरियत का लेवल बढ़ता जा रहा है। ओके। और दैट टाइम इट वाज अ ट्रिगर पॉइंट कि जब मॉम ने बोला कि हाँ कि अपन साथ रहते तो अच्छा होता है, सो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट। सो मैं फिर TCS में मैंने आई पुट अ पेपर डाउन कि भाई नहीं अब नहीं कर सकते। TCS ऑफर्ड मी ए सबैटिकल आल्सो, बट तब वही था कि सबैटिकल लूंगा तो फिर आई वुड नॉट कंसंट्रेट कंप्लीटली। और उस टाइम पे डैड वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद हिज बिजनेसेस, तो मुझे ऐसा लगा, यानी उनके भी वो पार्टनरशिप इश्यूज चल रहे थे, ही वाज लीविंग द पार्टनरशिप, और वो सोच रहे थे कि अपना खुद का कुछ चालू करते हैं। Then I came back from Belgium. Still I did a job for 1 year क्योंकि my father was like देखते हैं थोड़ा टाइम और देखते हैं, so I did one year job in India after that. फिर उन्होंने बोला कि नहीं चलो। So normally क्या होता है कि जब आप ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो, let's say you are going into a business where there are a lot of uncertainties. Even my father has done the business and he knows that there is a lot of uncertainties around it.
तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ वुड नॉट सपोर्ट यू टू टेक दिस प्लंज एट द एज ऑफ 30. Yeah, so I wanted to ask. So ये सब हो रहा है when you were around 30, right? Yes. That's हाँ, and by 30 आपने मतलब काफी कंट्रीज घूम ली थी Correct. एंड काफी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस आपने ले लिया था, राइट? When I have a Okay. offer in outside country only, like मुझे TCS ने बोला था कि बेल्जियम में you can go for a longer term like 10 years, 15 years, whatever you want to. Same way UK में भी मेरे पास ऐसा ऑप्शन था, बट तब वही था कि नहीं मुझे कुछ अपना करना है, एंड आई वाज इनटू दैट माइंडसेट कि नहीं मुझे कुछ लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. ये लाइफ तो इतना गुजराती तो यूएस, गुजरातियों का तो सेकंड होम यूएस होता है. सो व्हाई डिड यू नॉट थिंक अबाउट? सो मैं हमेशा अपने आप को उस वे में गुजराती यानी आई एम एक्सेप्शन इन दैट केस कि लोग गुजरात में तो यही होता है कि आप फॉरेन में रह रहे हो तो पीपल लाइक कि अच्छा खासा फॉरेन में. जब मैं वापस आया तो इट वाज अ वेरी कॉमन बिहाइंड द बैक टॉक्स कि ये बंदा लोगों को चांस नहीं मिलता है, इसको इतनी कंट्री में चांस मिल रहा था, ये वहां से ठोकर मार के वापस आ गया, क्या समझता है अपने आप को. सो दैट वाज ऑलवेज देयर. सो एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट स्केप्टिसिज्म वाज ऑलवेज देयर कि ये क्या पागल बंदा है, क्यों ऐसा कर रहा है, एंड दैट पुट लॉट प्रेशर ऑन माय पेरेंट्स आल्सो. बट आई एम लकी इन दैट सेंस, माय फादर ऑलवेज सपोर्टेड मी. उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम्हें कुछ करना है, आई विल सपोर्ट यू, आई विल पुट डाउन द मनी, यू आल्सो पुट डाउन द मनी, लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. और हमने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ पापा को थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस था. सो वी जीरो डाउन द बिजनेस वेयर वो एक बिजनेस में है जिसका थोड़ा नॉलेज है जो मुझे पास ऑन कर सकते हैं, एंड देन आई कैन बिल्ड ओवर इट. तो ऐसा हमने बिजनेस सिलेक्ट किया. माय वाइफ वाज वेरी सपोर्टिव. उसके लिए तो बहुत बड़ा स्टेप था ये, क्योंकि जब मैं बाहर की कंट्रीज में था तो बिकॉज मेरी वजह से उसका करियर ऐसे स्टार्ट नहीं हो पाया था तब, बिकॉज आई वाज गोइंग अब्रॉड. तो उसकी जॉब्स कभी स्टेबल हो ही नहीं पाई. स्टिल शी वाज लाइक कि चल तुझे करना है, आई सपोर्ट यू, टेक योर टाइम, डू इट वेल, देखा जाएगा जो होगा. So that support always I got, and that is like, this is the first lesson I want to share with everyone, that most of the families might not support you. Yes. And that is something might be a red flag. You need to check कि क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनके भी concerns आपको सुनने पड़ेंगे. You need to understand why they are saying this. अगर आपको उनके concerns में एक भी concern ऐसा लगता है कि यहाँ it can really hit you, then you need to change your strategy कि भाई अभी नहीं चालू करना है, थोड़े टाइम बाद चालू करना है, या कुछ सेफ्टी नेट के साथ चालू करना है. तो वो एक लेसन बहुत बड़ा होता है. मेरी केस में यह था कि मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, अच्छा सपोर्ट कर रही थी, तो मेरे को वो रेड फ्लैग नहीं आया, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि आई कुड सक्सेस इन बिजनेस. उनको ये लग रहा था कि भाई मेरा एक्सपोजर अच्छा है, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑन थिंग्स. तो जस्ट ऑन योर प्रीवियस पॉइंट, मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जब व्हेन यू सेड कि पेरेंट्स की सुननी चाहिए, या देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई द पेरेंट्स आर और एनीबॉडी हु इज डिस्करेजिंग, आई एम अ फर्म बिलीवर दैट कि बॉस इन सो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, राइट? हम लोग एट द एज ऑफ 30 वी हैव बेसिकली, हम जितना भी बोले हमने बहुत दुनिया देखी, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने बहुत पहाड़ तोड़ लिए. in front of parents experience we are nothing. Yes. So मेरा हमेशा से ये रूल रहा है, and that's just me, maybe it's others also, कि अगर कोई भी सलाह होती है ना, पेरेंट्स से लेनी बहुत जरूरी है. और अगर पेरेंट्स बोल देना एक बार कि नहीं, तो उस पर आर्ग्यू नहीं करना है. You said a very good point that get into the depth of it and see कि क्यों बोल रहा है कोई, काउंटर क्यों कर रहा है. So that's a very good point. हाँ, कंटिन्यू कर. हाँ, तो वो एक चीज सबको मैं वही बताना चाहता था. दैट्स गुड यू पॉइंटेड आउट. तो वो एक, उसके बाद इवन योर पेरेंट्स, एंड देन सेकंड इज योर फैमिली, योर वाइफ. If she also thinks that there are some cons, then listen to it. वाइफ की तो सुननी पड़ेगी भाई. I am lucky in that case. मेरी वाइफ ने मुझे हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है, whatever situation आए. एंड मैंने जब उसको बोला कि मुझे ऐसा कुछ करना है, she was like okay,
it's like I'll still do the job so that we have some cushion back. Although we are in a city where उसको इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता था, but at least some cushioning was there. तो और ये सूरत में है? हाँ, सूरत में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था. सूरत में IT is not that big and my wife is from IT background, so उसके लिए वो भी एक स्ट्रगल था. बट उसने जो भी जॉब मिली उसने स्टार्ट की, उसने किया, तो थोड़ा सा सपोर्ट रहे करके कि एटलीस्ट उसका ये सीन था कि भाई मैं क्योंकि पैसा नहीं दे सकता, तो उसने इस तरीके से सोचा था कि आई शुड नॉट बी फील लेफ्ट कहीं पे कि डिप्राइव्ड कि हाँ हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग मनी एंड आई एम काइंड ऑफ लूजिंग मनी बिकॉज इट्स द इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस. तो उसका यही था कि मैं इसलिए जॉब कर रही हूँ कि यू वॉन्ट फील दैट डिप्राइव्ड कि हमें कुछ चीज लेनी है या तुझे कुछ चाहिए. तो दैट समथिंग वी स्टिल हैव दैट नो स्पेस कि हाँ चलो मेरी सैलरी से अपन वी कैन मैनेज समथिंग आउट. So ये बिजनेस जो स्टार्ट किया किस में किया? Just give us some background. So basically my father is a pharmacist. तो उन्होंने एक मेडिकल कंपनी पहले एक्वायर की थी, फिर उसमें पार्टनरशिप में लोग आए, उन्होंने उसको अच्छा खासा ये उसका बेस बनाया गुजरात में. एंड देन पार्टनर्स ने थोड़ा सा उनके साथ ये हुआ, पार्टनर्स के साथ उनका डिस्प्यूट हुआ एंड he was having less percentage of share when everyone united. तो उनका परसेंटेज लेस था, तो that decision goes in the partner's favor. Yes. So उस केस में फिर उनको कंपनी छोड़नी पड़ी. So he got his shares, money share based on the valuation. थोड़ा बहुत फिर मैंने अपनी 7-8 साल के कैरियर IT में जो बनाया था पैसा वो मिलाया हमने. And we again started a new company on the same one because वहाँ पे उन्होंने एक एक्सपीरियंस ले रखा था, तो it was easier for us. बट हमने थोड़ा सा इस बार ये मिस्टेक की कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ली थी तो ही गॉट अ रनिंग कंपनी. दिस टाइम वी थॉट लाइक वी विल बिल्ड फ्रॉम द स्क्रैच. तो जब हम स्क्रैच से करने गए तो वी फेस अ लॉट ऑफ हार्ड टाइम, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तो वो टाइम एक ऐसा था कि जहाँ पे हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किया. थोड़े क्या बोलते हैं कि क्योंकि बिकॉज जब फादर ने भी ली थी तो उन्होंने एक रनिंग कंपनी ली थी, तो द टीचिंग इश्यूज ही इज ऑल्सो नॉट अवेयर. For the new scratch company, what if you are starting from a scratch, what are the teething issues comes in? He is also not aware. So we वहाँ पे हमें बहुत सारे challenges आए जहाँ पे हमको बहुत सारी struggle करनी पड़ी financially, other ways. दूसरा एक ये हुआ था because he was beaten by his partners, so this time he was not like अभी इस बार partnership नहीं करनी है. I want what जो भी पैसा होगा अपन बैंक से उठाएंगे, उससे ही मैनेज करेंगे. वो एक उनका अगेन दैट इज हिज माइंडसेट इज करेक्ट बिकॉज वो ऑलरेडी एक धोखा खा चुके थे, तो उनको यही था कि मुझे फिर से उस वे में नहीं जाना है. सो दैट्स द सेकंड लेसन कम्स इन. तो यहाँ पे ये हुआ कि हमने इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है, इंडिया में आप जब यूएस में होते हो तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू गेट अ वेरी गुड बैंक से भी एक सपोर्ट मिल जाता है कि आपको कुछ कम पैसों में लोन मिलती है एंड थिंग्स लाइक दैट. इंडिया में थोड़ा सा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जब तक आपके पास पेपर्स नहीं है और यू डोंट शो योर प्रॉफिट, you will not get a loan which is at that time at least it was not easy to get loan where you do not have much of booming business जो एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आपको फिर बहुत हायर साइड इंटरेस्ट रेट पे लोन लेनी पड़ती है. अभी इंडिया में थोड़े से वो अच्छे आ गए हैं कि बिकॉज ऑफ द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज जो स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहती है, जो बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहती है, सो यू कैन गेट सम मनी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन अ सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे आप थोड़ा सा वहाँ से अगर पैसा उठा सकते हो, आपके बिजनेस में डाल सकते हो, तो यू गेट अ सम लीव वे. जो एक लेसन लर्न करने की जरूरत है, जो मैंने मिस्टेक की थी जब, क्योंकि आई वॉज न्यू, मेरे फादर ने कभी वो लोन वाला किया नहीं था, दिस वाज फर्स्ट टाइम वी वर डूइंग. हमें यही पता था कि बैंक में जाना होता है, बैंक से लोन लेना होता है, बट हम जब बैंक में गए हमें पता चला कि इट इज 18% पर एनम, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन टू टेक दैट लोन. तो इनिशियल बिजनेस में वो एक चैलेंजेस आते थे कि जो हम कमाते थे वो बैंक के लिए ही कमा रहे थे, बिकॉज 18% इज अ ह्यूज अमाउंट. इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 18% पर एनम, which is like a very huge, and also principal is going back also. So वो एक हमेशा से एक स्ट्रगल होता है. तो यहाँ पे एक चीज आती है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो हमने क्या किया, एक हमारे पास एक थोड़ा सा कैपिटल था, उसके ऊपर
वी थॉट कि हमें पैसा मिल जाएगा बैंक से एंड ऑल दैट। तो एक आपको स्टडी पहले ये करना पड़ता है कि if you want to run a business and if you are making, it's like you are not earning a single rupee or you are just making everything is in a loss, like let's say आपका सैलरी का पोर्शन है और सब कुछ है, उसका आपको बैठ के कैलकुलेशन लगाना है, उसका 5 साल अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो तो जो पैसा लगेगा एवरी मंथ की कॉस्ट के हिसाब से, you need to set aside that money and that you have to put it as a capital। तभी आपको क्या होगा कि आपको बैंक के और ये सारे चक्कर बच जाएंगे। 5 साल आपको एक फ्रीडम है कि हाँ, आपको पता है कि 5 साल मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड बट स्टिल आई हैव अ कुशन कि हाँ, मैं वो 5 साल सर्वाइव कर लूंगा मेरे बिजनेस को। तो अगर वो 5 साल का एक कुशन आप लेके चल रहे हो तो इट इज वेरी इजी फॉर यू व्हेन यू डू द बिजनेस। अदरवाइज आपका वही होगा कि आप फिर बैंक के चक्कर लगा रहे हो, बैंक लोन दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है, तो उसमें स्ट्रगल आ रही है। ट्राई टू गेट द गुड पार्टनर्स, को-फाउंडर्स विथ यू, कि भाई जो आपकी जैसे सोच रखते हैं कि हाँ चलो मुझे भी ऐसा कुछ करना है, लेट्स डू इट, एंड वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है कि दे वांट टू पार्टिसिपेट फुल इन, कि चलो हाँ करते हैं। So that is something. So this you started alone. You didn't have any partner No, in this, yes, right? no. That was the thing. Yes. So at least if there is no partner, आपको अगर पार्टनर नहीं चाहिए तो फिर आप 5 साल का एक प्लान लेके चलो कि 5 साल आपके बिजनेस में से 0 इनकम आने वाली है और पूरा लॉस ही जाने वाला है, तो how much money you need to sustain that 5 years. So what happened? What was the next step in your journey? So my journey, as I mentioned, कि बैंक से फिर मैंने लोन उठाया which was very costly, so मैं बैंक के लिए कमा रहा था, फिर that vicious cycle started, that फिर एक लोन को चुकाने के लिए मेरे को दूसरा लेना पड़ रहा था, so that cycle goes on, then फिर आपका ये भी होता है कि कई बार आप पूरी एफर्ट लगा रहे हो but sometime your luck doesn't click। कई बार आपका टाइम खराब चल रहा होता है, आपका टाइम उतना चमक नहीं रहा होता है, आपने पूरे एफर्ट मारे हैं पर आप कुछ करने जा रहे हो, आपका सब कुछ हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे चीजें फॉल आउट हो रही है। जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि माय आइडिया वाज कि हम लोग एक मेडिकल कंपनी, यानी अब अपना पहला मार्केटिंग बनाएंगे, तब तक मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, फिर उसके बेस पे आई विल गो फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मुझे अच्छा ऑफर मिला, सब कुछ हो गया, तो बिकॉज इट वॉज अ हायर व्हाट यू से इन्वेस्टमेंट, दैट टाइम मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, सो लेट्स डू इट, एंड द लास्ट मोमेंट दे चेंज देयर डिसीजन, सो दैट हैज इम्पैक्टेड मी ऑन अ वेरी हाई साइड, क्योंकि तब तक मैं अपने हिसाब से वो उस प्लांट को लेने के हिसाब से मैंने काफी चीजें अपनी चेंज कर ली थी, कोर्स ऑफ एक्शन मैंने चेंज कर लिया था कि हाँ ऐसे जाना है। ऑल ऑफ अ सडन दैट डिसीजन केम इन कि भाई नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, तो अगेन सो दैट काइंड ऑफ डिसीजंस इज लाइक दैट इज अगेन अ लक। सो आपको वो टाइम भी आपको देखना पड़ सकता है, तो यू नीड टू बी वेरी सिक्योर विथ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई बंदा आ रहा है फिर लास्ट में आपको मना कर दे कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, आपके साथ नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। तो उस टाइम पे आप कैसे कोप अप करोगे चीजों को, आप कैसे उसको वापस ट्रैक पे लाओगे, दैट्स समथिंग लेसन वी ऑल नीड टू थिंक ऑफ कि भाई हाँ। सो बेसिकली योर रिस्क कैलकुलेशन शुड बी देयर ऑन द वेरी हायर साइड। यू नीड टू थिंक ऑफ, हम लोग क्या करते हैं जब हम बिजनेस चालू करते हैं, हम सब कुछ चीजें पॉजिटिव ही सोचते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैं 1 साल में इतना बना लूंगा, 1 साल में तो इतना हो जाएगा, हम कभी भी सब कुछ हो ही जाएगा, उस माइंडसेट से चल रहे होते हैं। हम कभी भी वो रिस्क प्रोफाइलिंग वाले माइंडसेट से बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हम यार हमारा बैकग्राउंड ये रहा होता है कि हम नौकरी करके आए होते हैं, हमने कभी वो एरा देखा नहीं होता है कि क्या नुकसानी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो when you start your business, that is one thing, from the day one you need to start your risk profiling from the day one, कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, how you manage your risk, how you go forward with the risk, कि उसको एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे उसको मिटिगेट करना है, that all strategies you need to think through from the day one. It is financial, it is your employee losses or any kind of things, like गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दी, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। जैसे हमारे केस में हुआ था जब जीएसटी आया वो हुआ तो चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई। फिर हम लोग फार्मा में तो रेगुलेशंस बहुत चेंज हो जाते थे,
तो वो सब चीजें आपको सारी यू नीड टू थिंक थ्रू इट जब आप बिजनेस चालू कर रहे हो, तो कि क्या क्या चीजें, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, जिसको आपके ऊपर, उसके ऊपर आपका कंट्रोल कैसे रहेगा. सो दैट समथिंग इट्स ऑलवेज यू नो. मैंने कोई स्टार्टअप ऐसा चालू नहीं किया था कि जहाँ पे मैं $1 million की बात कर रहा था. मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, इट्स अ वेंचर. बहुत तो लोग कितना कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग? so initially I Investment. put around 2 CR. In those years, right? Yes. We are talking like 213 times. So I put 2 CR. that's a very big amount of money at that time. Yes. So वही हुआ था कि मैंने और अगेन यहाँ पे भी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया था. I went all in, which is kind of like बोलते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा It's a gamble. हाँ, it's a gamble और it's a very risky thing. So मैं एक चीज यहाँ पे ये लेसन ये बताना चाहूंगा कि at least if you are not, I think I'm for audience there is a number called FIRE number, which is for your retirement planning. That if you have a good FIRE number you can retire. Then there is a fat FIRE and other things. So अगर आपका FIRE number आधा पहुंचा है तब जाके आप इन्वेस्ट करो, और उस पैसे को आप टच मत करो. जो आपने एक अपने इन्वेस्टमेंट से बनाया हुआ है उस पैसे को पूरा का पूरा इन्वेस्ट मत करो. उसको कहीं ना कहीं आधे में डिवाइड करो, आधा उसको साइड पे रखो और आधा लेके आओ. मैंने ये गलती जरूर की थी. मैं सारा ही पैसा एक ही टाइम पे मैंने बिजनेस में पूरा डाल दिया. तो वहां पे जब लॉसेस आने चालू हुए तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है. अगर वो आधा पैसा बचा है तो एटलीस्ट आई कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स. तो वो एक प्रॉब्लम हुआ कि जब मेरा पूरा पैसा उसमें लग गया. आई गॉट इनटू काइंड ऑफ अ डिप्रेशन आल्सो. आई वेंट इन की बिकॉज इट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी. मेरे पास मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या होगा आगे, कैसे होगा. लोन्स आर लूमिंग ओवर मी. तो वो कैसे होगा. मैंने बहुत सारे अलग अलग ट्राई किए. मैंने इवन आई लॉन्च अ प्रोडक्ट व्हिच वाज लाइक hair product. I launched, it was very good product, excellent results. I hired someone from US or researcher. That lady created a very potent product for the hair losses. मैंने पूरा एक बैच बनाया. बट जब मैं मार्केट वही अगेन बिकॉज देयर इज एक प्रोवर्ब है हमारे यहाँ पे कि जो जुआरी हार जाता है वो डबल खेलता है. उसको लगता है कि बस अगला ही गेम है, मैं वहां से निकाल लूंगा. So that's I forgot the English meaning. Fallacy. It's sunk cost fallacy. If you research on the internet, it's the word called sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy. So वो यही करती है कि उसमें आपको यही लगता है कि बस एक दाव और खेलना है, one more bet and I'm out. तो वो हमेशा एक चीज वहां पे आपको ध्यान रखने की, वो एक one bet can be fatal also. Yes. So वहाँ पे मैंने वो बैट खेला भी वहाँ पे. बट अगेन मैं पूरी तरह से उस एरिया का जानकार नहीं था. तो वहाँ पे भी ये हुआ जब मैं गया. तो इंडिया में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स मैटर नहीं करते, आपकी मार्केटिंग मैटर करती है. सो इफ यू आर बेटर मार्केटिंग, सो इफ यू आर डीप पॉकेट्स इन मार्केटिंग, योर प्रोडक्ट कैन ग्रो वेरी इजीली. हो सकता है मार्केटिंग का खर्चा भी बहुत है, बहुत अल्टीमेट खर्चा है. अब 2013-14 के टाइम पे या 16 के टाइम पे इंस्टाग्राम और ये सब इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था. फेसबुक था, बट अगेन फेसबुक भी आई वुड नॉट से लाइक इंस्टाग्राम, इट वाज वेरी पॉपुलर. तो फेसबुक में भी आप जाओगे, आप ऐड करोगे, बट यू विल नॉट गेट दैट इजीली गेट इनटू द मार्केट. एंड FMCG मार्केट ऐसा है कि जहाँ पे आप जब तक बड़ी कंपनी से नहीं आ रहे हो, इफ यू आर अ न्यू प्रोडक्ट, सो थोड़ा सा वो एक हमेशा पीछे छूट जाता है. वहां पे भी मेरा लर्निंग थोड़ा कम पड़ा. अगेन दैट इज वन मोर लेसन आई वांट टू पुट इट हियर. मेक योरसेल्फ लर्न अबाउट दैट प्रोडक्ट. और आप जितना सीख सकते हो. मार्केटिंग इज समथिंग आई एम वेरी बैड एट. एंड मुझे अगर मैं अपने फेलियर लिस्ट में एक रूट कॉज एनालिसिस करूं तो आई वुड पुट मार्केटिंग एज द नंबर 1 बिकॉज आई वाज वेरी वीक इन मार्केटिंग. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग इज you should be pro in marketing. At least not pro, but you should have a good knowledge around marketing.
how you want to place your product, how you want to market your product, how you want to know what target audience you want to capture. ये आप जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है, व्हाट इज द प्राइस पॉइंट ऑफ योर प्रोडक्ट, ये जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है, ये सब कुछ आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, तब तक इट्स अ रेसिपी ऑफ फेलियर. सो योर मार्केटिंग गेम शुड बी वेरी हाई. आपको ये नॉलेज होना ही चाहिए. रन थ्रू द बुक्स, रन थ्रू द इंटरनेट, लर्न wherever possible. What are the examples? Get yourself educated using MBA marketing stuffs. आप भले MBA ना करो, but at least marketing की बुक ले आओ, पढ़ो, उसको समझो. वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी. Marketing is something you need to be, very good at. Then second thing, first मेरे लिए रूट कॉज, लोगों के लिए रूट कॉज हमेशा फाइनेंस होता है. मैं अपने उसमें कैरियर में देखूंगा तो मेरे लिए रूट कॉज हमेशा मार्केटिंग था. सेकंड इज फॉर मी, आई कुड से दैट फाइनेंस, जहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लंडर्स किए. जैसे मैंने ये 5 साल का प्लान नहीं सोचा, वो नहीं होना चाहिए. आपका एटलीस्ट 5 साल का प्लान होना चाहिए कि आपके पास उतना पैसा हो, या आप पार्टनर्स लेके आ रहे हो, आप जो थोड़ा सा जो भी फाइनेंशियली इन्वॉल्व है यहाँ पे. और इवन if you're going in a business with the founding employees, not the founders but the founding employees, let's say 6 or 10 employees, get their skin in the game. Maybe you can give them that, okay, I'll give you the ESOP, or ESOP is a big thing because smaller business में ESOPs नहीं आते हैं. but let's say कि उनको भी बोलो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो करो, मैं आपको पार्टनरशिप दूंगा कंपनी में. so that's something could have been, तो वो क्या होता है, फिर उनकी स्किन आ जाती है गेम में. फिर वो एज ए एम्प्लॉय काम नहीं करते. वो फिर ये सोचते हैं कि चलो दिस इज माय ओन बिजनेस एंड दिस आई वांट टू मेक श्योर कि ये ग्रो हो, तो मैं भी ग्रो होऊंगा उसके साथ. एंड आई थिंक दैट इज वेयर ESOP केम इनटू द पिक्चर आल्सो फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज. कि ESOP में भी लोग यही कहते हैं कि कम सैलरी देते हैं, बट ESOP देते हैं तो उनको बिजनेस के अंदर अपना एक पार्टनर बना लेते हैं. So that concept you need to bring into the smaller ventures also. कि ऐसा नहीं है कि वो खाली ESOPs आप बड़े बिजनेस में ही कर सकते हो. Try finding some innovative ways to get that kind of thing in your venture when you start at a smaller spaces. There are business जहाँ पे आप alone भी कर सकते, यानी आप अकेले ही बिजनेस कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. But when you need a team of people, then this thing really matters a lot. क्योंकि जब आप उनको अपने साथ जोड़ लेते हो इस तरीके से, तो फिर वो भी आपके लिए उतना ही आपकी तरह ही सोचना चालू करते हैं. दे वोंट थिंक एज ए एम्प्लॉय, दे विल थिंक लाइक बिजनेसमैन. सो एक चीज शायद मैं नहीं कर पाया जो करनी चाहिए थी. सो दैट इज वन थिंग आई लर्न. फाइनेंसेस अगेन, लोन्स इज अ विशियस सर्कल. तो अगर आप लोन्स में जा भी रहे हो तो ट्राई टू गेट योर लोन फॉर मल्टीपल ईयर्स. मैंने जैसे बिजनेस लोन्स उठाए, उसकी जगह पे मैं ये कर सकता था, मेरे पास था इतना कुछ था नहीं, बट एटलीस्ट मैं ये कर सकता था कि लेट्स से इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी, और वो अगर लोन फ्री प्रॉपर्टी है तो लेट्स सो गो ऑन पुटिंग दैट प्रॉपर्टी सो दैट व्हेन देयर इज अ कोलेटरल बिहाइंड योर इंटरेस्ट रेट कम्स डाउन अ लॉट. तो उस टाइप के बिजनेसेस में आप जाओ कि भाई हाँ आपको वो मिल रहा है कि भाई हाँ चलो मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं उसको ये रख सकता हूँ, मॉर्गेज पे रख सकता हूँ, तो उसमें मेरे लोन परसेंटेज कम हो जाएंगे, प्लस आपको लॉन्गर टर्म लोन मिलेगा. ट्राई टू गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज विच इज अगेन, आपको तुरंत ये नहीं करना है, प्रिंसिपल नहीं पे करना है, बट एटलीस्ट यू पे इंटरेस्ट एंड यू स्टिल रन योर बिजनेसेस. तो वो सारी चीजें. But at that age when you started, I think you had the cash because you had worked and you had saved, but you lacked these finer details and the knowledge of how to do that. So अब there can be many people, right, जो उस एज ब्रैकेट में है, जो एस्पायर कर रहे होंगे कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरे को ये नौकरी नहीं करनी, मेरे को धंधा ही स्टार्ट करना है, एकदम बढ़िया से एकदम बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं. तो उसके लिए दैट्स अ गुड पॉइंट यू रेज कि they need to level up their knowledge and of this game. It's very difficult. So that is the hard truth, unfortunately. Yes. So before leaving the job and before plunging on it, you should have a thorough knowledge
कि आप जो करने जा रहे हो उसमें आपको हर तरीके का नॉलेज है. You know what is the business about, how it runs, how it marketing कैसे होगी, financials कैसे आएंगे. उसके बाद ही आप एक प्लंज ले सकते हो कि हाँ चलो अभी मेरे को नॉलेज है, एटलीस्ट उतना नॉलेज हो गया है कि मैं बिजनेस को एक सक्सेस रोड पे लेके जा सकता हूँ. ये हो जरूरी नहीं है कि होगा, बट एटलीस्ट विद द नॉलेज योर रिस्क इज मिटिगेटेड टू सम एक्सटेंट. कि हाँ चलो आपको बहुत सारी चीजें पता है जो आप मिस्टेक्स अवॉइड करोगे. तो आप जहाँ पे 15 मिस्टेक करने वाले थे वहां पे आप 3 मिस्टेक करोगे. सो यू आर एटलीस्ट वो कुशन बहुत जल्दी वियर ऑफ नहीं होगा. आप जो मेरे केस में हुआ कि मेरे को 5 साल में निकलना पड़ा वहां से, उसकी जगह यू कैन गिव योर सेल्फ से 1 to 8 years. और हो सकता था कि वो 3-4 साल और में लगा देता तो मैं टर्न अराउंड भी कर जाता, बट मेरे पास वो रनवे नहीं था. So I wanted to ask you, why did you not stay a little bit longer in the game? यानी मेरा रनवे खत्म हो गया था. I was like my money was drained completely. एक ये भी हुआ कि in between when I was on peak losses, we are blessed with the baby boy. तो उसकी एक थिंकिंग चालू हो गई कि अब हाँ इसका फ्यूचर और कम हो जाता है रिस्क लेने का. हाँ. तो एक वहां पे एपेटाइट कम हो गया कि अभी इसका कैसे करेंगे. तो वो एक चीज है. तो आपके फैमिली प्लानिंग्स भी उसके आपके बिजनेस के अराउंड होने चाहिए. या तो आप पहले से करके बैठे, आपके बच्चे हैं, आपने उनको एक अच्छी तरह से रेस कर दिया, उसके लिए एक अलग फंड रख दिया है, देन इट्स फाइन कि आपको उसके लिए सोचना नहीं है. अगर आप 30 मेरी एज में कर रहे हो तो देन आइदर यू प्लान फैमिली लेटर ऑन कि एटलीस्ट आप थोड़ा कमा लो उसके बाद हो. या आई वुड नॉट गो इन दैट वे बिकॉज 30 इज अ वेरी क्रिटिकल एज फॉर द हैविंग चिल्ड्रन एंड ऑल. उसके आप उसको डिले नहीं कर सकते हो ज्यादा. सो रादर you plan early, you have a kid, you plan for his education at least for at least for 8 to 10 years in advance. कि भाई उसका एक अलग से आपने फंड कर दिया है, उसको एक फंड अलग से रख दिया है, and he will be surviving over that fund. So you need not to worry on that. So for me, if you are starting a business in 30, I would rather ask to go give yourself more 5 years. If you have not achieved your fire numbers, still you want to start at 35. आपका एक बच्चा क्या होगा कि एक मिडिल स्कूल तक आ गया होगा और आपने उसके लिए एक सेविंग करके रखी होगी. So you know that he is secure, his future is secure with at least with his studies. तो आपका भी एक मेंटल पीस रहेगा कि मुझे उस साइड नहीं देखना है. आपका पार्टनर जॉब कर रहा है तो आपको वो लगेगा कि चलो मेरे को घर का भी, आई एम नॉट दैट कंसर्न बिकॉज आई एम गेटिंग द सेकेंड इनकम फ्रॉम माई पार्टनर. So you will completely concentrate on your business with the money what you have. And again you need to make a stop losses. तो जैसे मेरे केस में भी मैं एक स्टॉप लॉस पे निकल गया, तो आपको वो स्टॉप लॉस पता होने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज संक कॉस्ट पॉलिसी वो आपको और अंदर डीप लेती ही जाएगी. Just like the stock market, I mean, जहाँ पे आप जब स्टॉक लेते हो स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे चलना है. So that's in the business also that should be the case. कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहते हो. हो सकता है कई बार कि अगर आपके पास प्लान बी होता है तो आप प्लान बी के साथ चले जाते हो. सो समटाइम्स इट वर्क्स कि भाई आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो शायद आपका बिजनेस चल पड़े, बट इट्स नॉट एवरी टाइम. सो आई वुड रादर पुट कि स्टॉप लॉस शुड बी देयर और यू नीड टू reevaluate yourself every quarter or every 6 months कि are we on the right track कि भाई चलो अभी losses हो भी रहे हैं, but are we, I am making a top line good, my business is making good top line, my business is making good bottom line, मैं हर जगह वहाँ पे कवर कर रहा हूँ, मेरे finances की strain नहीं है, यानी मेरे को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं या मेरे बैंक के चक्कर कम हो रहे हैं. So that evaluation should go every 6 months कि भाई हाँ because of this I can वो एक क्या होता है ना, जब आप बिजनेस में आते हो तो आप वो सारी चीजें छोड़ देते हो कि नहीं you always want to feel positive, but this is something you always need to reevaluate yourself after 6 months कि भाई मुझे ये चेक करना है कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में हूँ नहीं हूँ, कैन आई डू द कोर्स करेक्ट,
if not, if I am not able to do the course correct, is it the right time to wind up and move somewhere else? So वो कौन सा पॉइंट था जब when you realized कि यार नहीं हो पा रहा है? I mean, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रियलाइजेशन ऑफ इट कि ये नहीं हो पाएगा, और दूसरा हमें बताएं कि वो रीजन क्या था कि वो नहीं हो, whatever you started. So you were trying to do something in the pharma industry, right? So we'll not go into too many details, but still keep ठीक है, रियलाइज हुआ कि नहीं ये अभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, बट वो रीजन क्या था? व्हाट वाज द रूट कॉज कि व्हेन यू रियलाइज कि यार इस वजह से नहीं हो पा रहा है ये? बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एक मार्केटिंग वाज द बिगेस्ट वन, कि मैं उस चीज को कैपिटलाइज कर ही नहीं पाया. मार्केटिंग को मैं कभी, मार्केटिंग ने धोखा दे दिया. हाँ, यानी मार्केटिंग में नहीं सीख पाया. यानी पीपल, यानी मैं यही बोलना चाहूंगा कि दो आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, बट समटाइम्स वो मुझे मार्केटिंग में नहीं हेल्प लगी. यानी मैं आई वाज नॉट एबल टू मार्केट थिंग्स. तो वहाँ पे मुझे एक अपना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मार्केटिंग कर लूंगा बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, सो मार्केटिंग विल बी ए वेरी इजी फॉर मी. बट व्हेन आई रियलाइज कि मैं वो मार्केटिंग, जब मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, हेयर प्रोडक्ट, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं मार्केटिंग में बहुत कमजोर हूँ. यानी मुझे एक ऐसा बंदा साथ में चाहिए अगर मेरे को बिजनेस करना है. तो आई एम वेरी, देन आई रियलाइज कि मेरी स्ट्रेंथ है ऑपरेशंस. आई एम वेरी गुड एट मैन्युफैक्चरिंग, आई एम वेरी गुड एट ऑपरेशंस, बट मार्केटिंग इज नॉट माय फोर्टे. तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम, अगर मैं हाइंडसाइट पे देखूं, अगर जो हेयर ग्रोथ का जो प्रोडक्ट है, और अगर मैं कोरिलेट करूं आज से क्या 10 साल पहले या 20 साल पहले, 10 साल पहले यू वर ट्राइंग दिस, राइट? सो उस टाइम पे तो ये एकदम न्यू मार्केट थी, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे. एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, जितने भी हेयर ग्रोथ के प्रोडक्ट्स जो आए हैं वो अभी मोस्ट रिसेंटली बहुत ज्यादा ट्रैक्शन और बहुत ज्यादा उन्होंने, क्योंकि अभी बिकॉज सोशल मीडिया इज टू मच नाउ. सो अभी क्या होता है कि अवेयरनेस बढ़ गई है. अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस ज्यादा आ रखी है कि हाँ. तब क्या था, तब आप एक टीवी में ऐड देख रहे थे, तब इतना अवेयरनेस नहीं था. तब OTTs प्लेटफॉर्म्स इतने काफी नेशनल स्टेज में थे. आप इंस्टा भी इतना नहीं करते थे. जब मैंने किया था तब इंस्टा वाज वेरी वेरी नेशनल स्टेज इन इंडिया. तब फेसबुक ही होता था. फेसबुक ही होता था. हाँ, तो फेसबुक में एड्स करना इट्स नॉट दैट, उतना मजा नहीं आता था. यानी इट्स नॉट दैट रीचेबल, इवॉल्व नहीं था. जैसे अभी इंस्टा में आप जब ऐड करते हो तो इट्स काफी इवॉल्व मार्केट. तो वहां पे वो चीजें थोड़ी सी मुझे ये कर गई कि हाँ. और मैंने जब ये लॉन्च किया तब मेरी मिस्टेक ये भी हुई, तब तक ऑलरेडी आई वाज ड्रेन्ड. मैंने जब लॉन्च किया, अगेन फ्यू पीपल सेड दैट दे विल इन्वेस्ट, बट उन्होंने नहीं किया. तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैं फंस गया. मैंने कोर्स करेक्शन, मैं तब वहां पे कोर्स करेक्शन के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बची, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि आई विल इन्वेस्ट विद यू, आई लाइक दिस प्रोडक्ट, आई एम हैप्पी दैट आई सी दैट इट कैन ग्रो वेरी वेल. सो फिर उस हिसाब से मैंने पूरे प्लान्स बना लिए कि भाई हाँ, इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये होगा, वो होगा. एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन ड्रॉप्ड. So, इसमें तो पार्टनर्स भी ढूंढना, बहुत ढंग के पार्टनर ढूंढना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस, दैट्स द मेजर थिंग. लाइक आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे. ट्रस्ट नहीं कर, यानी ये बंदा कल चेंज नहीं हो जाए. आपका इतना ट्रस्ट उसके होना चाहिए. यानी आप जब वो कोई डिसीजन लेते हो तो आपको, यानी उसको पहले इन्वॉल्व करके फिर डिसीजन लो. जो मैंने गलती की थी, मैंने उस ट्रस्ट पे किया था कि हाँ ये आ ही जाएगा, एंड आई डिड माई एवरी मूवमेंट्स ऑन अक्रॉस दैट. उसके बाद वो नहीं आया तो एवरीथिंग फॉल ऑन मी. तो फिर और लोन के चक्कर हुए और थिंग्स. सो मेरी, और फिर एफएसआर वे में मैं चला गया, तो मैंने भी फाइनेंशियल चीजों को ढंग से नहीं किया. यानी आई गॉट इमोशनली ऑल्सो इन दैट कि भाई अभी हो गया, अभी मेरे को करना है, क्या करूँ, कैसे करूँ. जो समझ में आया है वो मैं करता गया. आई गॉट वेरी मच इमोशनल इनटू दैट. सो बिजनेस में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी रहना काफी जरूरी है. फॉर मी दैट इज अनदर, मेरा एक अपना खुद का फीडबैक ये है कि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन. तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल कई बार नहीं हो पाता हूँ. तो बिजनेस रन्स ऑन अ प्रैक्टिकल थिंग्स. तो वहां पे आपको काफी थरो होना है कि भैया
मुझे यहाँ से इस जगह पे मेरे को दिख रहा है, मेरे को यहाँ से बाहर आना तो बाहर आ ही जाना है, या मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है तो मुझे डिसीजन नहीं लेना है। मैं आई कैन नॉट गो ऑन इमोशनल थिंग्स कि भाई हाँ नहीं नहीं अब तो ये इसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये लेना पड़ेगा, भले ही मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आई डोंट वांट टू डू दिस, बट स्टिल विद बिकॉज ऑफ इमोशन आई एम टेकिंग द डिसीजन। सो दैट इज अनदर थिंग कि वो आपको हमेशा अपने इमोशंस को बहुत इंटैक्ट और बहुत कंट्रोल रखना है। सो दैट्स समथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो इनटू द फेलियर। बट जिगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि इट रियली टेक्स गट्स to do what you did. So I mean a normal person, even if a person has money, वो बंदा 10 बार सोचता है कि यार मैं करूं ना करूं, should I go all in, should I take the plunge? पहले तो प्लंज की बात होती है, ठीक है, all in तो next level है, वो तो level up आप गए। So I mean kudos to you. I mean really this is I know you've told me this story before also, and every time I used to think about it and I used to think यार इसके तभी तेरा नाम जिगर है, तेरे अंदर जिगर है। So you have lived up to your name. Yes. तो वो challenges थे, but again I would say that कि फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, तो I could manage everything. I came out of it very well. क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था कि आई वॉज इनटू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि फेलियर हिट्स यू सो हार्ड। क्योंकि इसके पहले आपका कभी फेलियर, जॉब में आपने कभी फेलियर देखा ही नहीं है, यू हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ टाइम कि जहाँ पे आपको यू नीड टू काउंट एवरी सिंगल रुपी। फिर आप आईटी के उससे निकले, आईटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि बाकी जगह पे क्या होता है ना, बाकी जगह आपने बहुत स्ट्रगल्स देखी होती है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने एक नीचे के लेवल से स्ट्रगल देखते देखते आप जब आप अपने भी डेजिग्नेशन पे पहुंचते हो तो आपने काफी स्ट्रगल देख चुके होते हो। आईटी में दिस पार्ट इज ऑलवेज मिसिंग, कि आप पहले दिन से एक अच्छी सैलरी पे होते हो, आपकी लाइफस्टाइल पूरी एक अलग होती है, 5 days a week आराम से जिंदगी जी रहे हैं, and then when you enter into something, then that hits very hard when you get into the failure. Other people can easily digest the failure, but for us IT people it is very difficult. I would not say कि नहीं कर सकते, but it is a difficult phase that time. So that is something that is where you need your family, कि भाई हाँ आप फील हो भी रहे हो तो लेट्स डिस्कस हम इन द फैमिली कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है, उनका सपोर्ट लो, आप उनसे हेल्प लो कि भाई क्या करें आप। तो मेरे केस में भी ये हुआ कि जब सब जगह से फेलियर्स दिखना चालू हुए मुझे, देन आई सेट विद माय फैमिली कि भाई अब क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। दे सपोर्टेड मी वेरी वेल कि व्हाट यू थिंक, यू वांट टू गो मोर डीप इन इट, व्हाट यू थिंक कि तुम्हें जाना चाहिए, वी शुड अरेंज सम मनी, या फिर तुम्हें लगता है कि अभी इससे थोड़ा सा बाहर आ जाना चाहिए, यू कैन स्टिल हैव योर कैरियर बैक इन आईटी, इज इट पॉसिबल टू गो इन योर इन दैट डायरेक्शन। तो वहां पे फिर एक डिसीजन आया कि भाई चलो लेट्स ट्राई इन आईटी, अगर कुछ होता है आई कैन गो बैक, लेट्स डू दैट। तो मैं वहां से बाहर जॉब ट्राई की, सूरत में ही जॉब ट्राई की इनिशियली, तो कि तब मैं सूरत छोड़ नहीं सकता था क्योंकि बिजनेस को भी एकदम से वाइंड अप नहीं कर सकते थे। तो मेरे को ऐसी जॉब चाहिए थी कि मैं वहीं पे रहूं और उसके साथ साथ आई कैन हेल्प माय फादर रन द डेली बिजनेस का जो डेली ऑपरेशंस है वो भी रन होता रहे। So started looking into the businesses, started looking into the job, started with a very low salary from where I left and from where I joined IT back. But again, it was just the entry point. I took it that way, that just I wanted to enter back into the industry. So मैं enter But I think you've caught up. I think you've caught up very well. Yes, Yeah, and God's that's grace, good for वो भी गया. But वो एक time था. तो this is one more lesson for everyone that तो हो सकता है your family won't understand the complete business, but at least get them involved with your day-to-day challenges. If you are feeling lonely, or if you are feeling too many challenges, maybe get them involved. Sometimes their view help you out. Yes. Yeah. And Yes. and if they are aware, they will support you. If you all of a sudden, if you go say, go there and say that, okay, bhai,
I am just bankrupt now. So that will be a challenge for them also to support you out. So if they दुनिया are अपना aware, एक एडवाइजरी पैनल रखती है हाँ, जो सो मेरे बिजनेसमैन हिसाब होते से हैं. हाँ, वो तो होते ही आपके साथ, बट इवन यू नीड इमोशनल पैनल एज वेल. The Yeah. advisory panel is for your practical things, but at the same time you need a emotional panel, which is your home, your family, हाँ. your very close friends. बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ. अगर वो नहीं हो तो बंदा टूट ही जाए. मतलब हाँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू So बाउंस in बैक. the failure you need this, both the things. You need a good advisory as well as you need your support system. अगर ये दोनों आपको कंबाइन हो जाएंगे, हो सकता है आपका बिजनेस भी ग्रो कर जाए. You find out some, मेरे केस में नहीं हुआ, that's a different story. आपके ये दोनों अच्छे हैं, आपको अगर बाहर निकाल सकते हैं, आपको कोई अच्छा ये दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, यू कैन अगेन रीग्रो योर बिजनेस एज वेल. सो ये दोनों होना बहुत जरूरी है व्हेन यू गो इनटू द बिजनेस. हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि घर वालों को क्यों परेशान करना, क्यों उनको सारी चीजें बतानी है, व्हाई वी वांट टू गेट देम इन्वॉल्वड इन थिंग्स they might not understand, but I would rather put it this way, that involve them. At least whenever you need a emotional support, they are there. Yes. वो लोग भी, उनको भी parents, पता your होता है, wife, हाँ, your family, yes, हाँ. उनको भी पता होता है कि आप एक चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, आपको कुछ, एटलीस्ट आप जब घर पे जाते हो तो दे ट्राई टू चीयर यू अप कि हाँ चलो जो भी हो रहा है विल फाइट इट टुगेदर. यार चार बंदे साथ में बैठ के, अगर चार बंदे साथ में बैठ के सलाह करते हैं तो कोई ढंग की चीज निकल ही जाती है. करेक्ट. एंड उसके लिए अगेन आई एम सेइंग दैट दे माइट नॉट बी एबल टू गिव यू अ वेरी बिजनेस स्पेसिफिक एडवाइजरी और एनीथिंग, बट एक वो हौसला जो हम बोलते हैं कि हौसला बांध देते हैं. दे विल पुट यू, दे विल पुट दैट faith in you कि भाई हाँ हो जाएगा, तू टेंशन मत ले. दैट कई बार एक रैंडम एडवाइस भी हिट करती है बहुत जबरदस्त. Correct. यू नेवर नो कौन सा बंदा कौन सा आइडिया लेके क्या बोल जाए. हाँ, एंड यू लाइक वन शुड बी वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू दीस थिंग्स करेक्ट. एंड हम लोग, इम्प्लीमेंट. हाँ, सो हम लोग कई बार यही करते हैं कि बिजनेस करते हैं तो हम अपने अंदर ही रख लेते हैं सारी चीजें कि नहीं हम किसी को बताएंगे नहीं, हमारे क्या चैलेंजेस है, क्या है, हम खुद ही मैनेज करेंगे. वो थोड़ा सा है कि एटलीस्ट आपके इनर सर्कल में यू डिस्कस, तो वो वहां से कुछ ना कुछ आ सकता है कि भी चलो एटलीस्ट वो आपको एडवाइस देगा कि चलो हाँ भाई अभी स्टॉप लॉस हो गया तेरा, तो यू कम आउट ऑफ इट. हो सकता है कि राइट टाइम पे आपको एडवाइस दे दे कि हाँ चलो स्टॉप लॉस बहुत हो रहा है, यू कैन नॉट सस्टेन इफ यू गो इन दिस स्पेस, सो आइदर यू कम आउट ऑफ इट और मेक योर सेल्फ सस्टेनेबल. तो वो चीजें वहीं से निकल के आएंगी जब आप एक ये सर्कल रखोगे. तो सो इन द फेलियर दिस आर द थिंग्स लाइक यू नीड टू आइडेंटिफाई योर रूट कॉजेस की क्या फेलियर के रूट कॉजेस है, कैन यू कैपिटलाइज ऑन इट कि जो आपको रूट कॉज लग रहे हैं, कैन यू वर्क थिंग्स अराउंड कि भाई हाँ ये रूट कॉजेस रिजॉल्व हो सकते हैं. अगर रिजॉल्व नहीं हो सकते तो व्हाट आर योर नेक्स्ट स्टेप्स की अगर नहीं रिजॉल्व हो रहे हैं तो नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, हाउ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट. In the new scenario, I mean, in the current scenario rather, where the ease of doing business has also kind of evolved. Yes. There are very successful models. Government has created such a good platform which can help you segue into these kind of business opportunities and really thrive. तो इसमें आज की डेट में अगर हम 10 साल पहले, चलो 10 साल पहले हमने का सिनारियो देखा, और अगर हम आज की डेट में अगर जिगर आज होता वहीं पे, तो जिगर क्या सोच रहा होता? वुड यू अगेन गो ऑल इन? व्हाट इज दैट हार्ड ट्रुथ? I would not go all in as I mentioned, क्योंकि all in की वजह से ही चीजें बहुत खराब हुई. That is the first thing. So अगर मैं आज भी वहां पे होता तो मैं ये सोचता कि एटलीस्ट आई हैव सम क्वेश्चन व्हिच सपोर्ट माय चाइल्ड, कि उसके कारण मुझे वो टेंशन नहीं आना चाहिए कि मैं आई नीड टू कम आउट ऑफ इट. देन आई go with all the schemes, understand them properly. My finances with the government schemes कि मुझे कहाँ से क्या हेल्प मिल सकती है. Now there are many consultants around who can guide you कि आपको कैसे स्टार्टअप चालू करना है, what are the loans available from the government, what are the this thing. Another thing, you can pivot out something first before you plunge to it.
अगर आप ऐसा कुछ बिजनेस सोच रहे हो कि जहाँ पे आप एक वीकेंड में भी थोड़ा साइड हसल करके उसको पहले पकड़ सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई वुड सजेस्ट दैट डू दैट पार्ट फर्स्ट. सो work along with your work, do some side hustle for the particular business you want to go in. Understand completely कि क्या क्या challenges आते हैं, what are the risk areas, क्या उसको कैसे करना है. थोड़ा उसके बाद when you have a plan ready कि क्या रिस्क आएंगे, उसको कैसे मिटिगेशन किया जाएगा, क्या challenges को कैसे सॉल्व किया जाएगा, then take that plunge. बट उसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है, साइड हसल में you cannot do moonlighting when you're working for an organization. So you should not be, you should not betray your company, your organization. Yes. वो तो it's again an ethical thing that they are paying you for your hours, so you should not be. I mean, you are what you are because of them, right? I mean, you owe it to them. Correct. So आप ऐसा साइड हसल कर रहे हो जो उनके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उनका जो टाइम है उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसके बाद के टाइम में आप कर रहे हो थोड़ा सा साइड हसल, तो दैट इज फाइन. एंड साइड हसल में भी ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन से बिजनेस करना ही है. यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट कि ये बिजनेस कैसे करना है, किसके चैलेंजेस क्या है. यू स्टार्ट इंटरव्यूइंग पीपल, प्लान बनाओ, यू गो मार्केट प्लान बनाओ, उसके बारे में पढ़ो, उसका मार्केट रिसर्च करो, स्टडी करो, रिसर्च करो. एंड देन सो इट्स नॉट आप अपने काम को भी कर रहे हो, साथ साथ आप अपना एक साइट का बेस बना रहे हो, आप एक अपने नॉलेज बेस बना रहे हो. और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आई हैव इनफ नॉलेज बेस, आई हैव इनफ सेविंग्स टू सपोर्ट माय इनिशियल इयर्स, देन टेक अ प्लंज इन इट. क्योंकि सेविंग्स फॉर द फ्यू इयर्स इज रिक्वायर्ड. सो लाइक गुजराती में भी से दैट कि फर्स्ट 1000 days in a business you need to you will not earn anything. First 1000 days is a loss. ये तो देखो गुजराती में बोलना पड़ेगा, ये गुजराती में बोल के तो 1000 દિવસનો રોટલો જાતે રડવાનો, ये धंधा नहीं है, ये धंधो नहीं है यहाँ पे. So that is what we call it कि first 1000 days का जो खाना है वो आपको पहले से ही साइड पे रख देना है, वो आपका बिजनेस आपको नहीं देगा. So that is it's like ये भी उनके एक्सपीरियंस से ही आया हुआ है जिन्होंने बिजनेस किए हुए हैं कि भाई पहले फर्स्ट 1000 days में आप नहीं कमाते हो, कितना भी कर लो, और अगर कमाते भी हो तो यू नीड टू री इन्वेस्ट बैक, सो यू कैन नॉट टेक द मनी आउट. सो दैट इज अनदर थिंग. अगर एक कोई बुक होती है ना जिसमें जो पहले जो कहते हैं ना, जब बड़े बुजुर्ग कह गए, है ना, ऑफन कई लोग बोलते हैं ऐसे कि यार तुम्हें पता है ये तो बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं. आई विश देयर वाज अ बुक, आई एम श्योर देयर इज, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट. वो अगर हम वो चीजें पढ़ लेना जो पुरानी टाइम्स पे जो चलती थी, जो फिलॉसफी चलती थी, और जो उन्होंने जितना एक्सपीरियंस किया सब कुछ और लिखा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा, वो अगर हम उसको भी आज भी अडॉप्ट कर लेना तो आई थिंक हम काफी सेफ रहेंगे. यस, यानी हमारे यहाँ प्रोवर्ब्स सिखाते हैं पर इस लेवल पे नहीं सिखाते कि क्या इसका सही में क्या एक रीजन होगा इस चीज को बोलने का. तो वो एक चीज है कि हाँ हमने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत कुछ नोट डाउन किया है इन सब चीजों से, प्रोवर्ब्स बना के कि भाई एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं सबके साथ. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. या सो दैट इज, हाँ ओवरऑल यही था कि दिस आर माय फेलियर्स एंड आई वांटेड टू शेयर दैट कि कैसे अवॉइड करना है इसको. एंड दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन कि देखो रिस्क तो लेना ही चाहिए. और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि दो आई गॉट फेलियर्स, बट मुझे लाइफ में वो एक अफसोस नहीं रहा कि मेरे को जो करना था वो मैंने नहीं किया. यानी कई लोग वो अफसोस के साथ अपना ये बिता देते हैं कि यार मुझे बिजनेस करना था, काश मैंने उस टाइम पे किया होता. तो यू शुड नॉट गो इन दैट कि भाई हाँ नहीं कर पाया. बट हाँ जब करो तो विद दिस प्रिकॉशंस, सो दैट आप जब करो भी तो एक आप इजीली सक्सेसफुल हो जाओ. क्योंकि देखो यही होता है कि लाइफ में हम 60 साल के बाद जब रिटायर होते हैं तो वी स्टार्ट रिग्रेटिंग थिंग्स कि भाई मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा यंग था तब मेरे को एक ये वाला काम करना चाहिए था, मुझे ये थोड़ा सा ऐसा कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया. अब मैं रिटायर हो गया, अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं
कर पाऊंगा ये सारी चीजें, तो वो एक काश नहीं आना चाहिए। और वो नहीं आने के लिए एज आई मेंशन कि भाई पहले सीखो बिजनेस को, फिर उसमें ट्राई करो। अगेन अगर आपकी कंपनी सबैटिकल दे रही है, आपको बोल रही है कि भाई हाँ चलो तुम्हें 2 साल बाद हम वापस ले लेंगे, गिव योर 2 years इन दैट बिजनेस, थिंक ऑफ इट कि हाँ 2 साल बाद यू एनालाइज योरसेल्फ कि कहाँ खड़े हो। अगर अच्छा नहीं चल रहा है, ज्वाइन बैक, एल्स गो अहेड। और अपने और अपने पार्टनर्स को हमेशा साथ रखे कि भाई हाँ चलो मुझे ऐसा कुछ करना है, व्हाट यू थिंक। वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं कह रहा था कि रिग्रेट्स के ऊपर जो तो आपने बात करी, वो रिग्रेट्स पे तो एक बुक लिखनी चाहिए। we've kind of seen so much in our lives, and मैं पर्सनली एक बहुत जल्दी एक छोटी सी एक बुक लिखूंगा, The Regrets of My Life. Okay. But when I'm doing that will be, I think, a good topic for another podcast. But I think we all should jot down our regrets. कि कई चीजें होती हैं जो because these regrets that we write down, if we give them to our children, correct, उनको उसमें से कई चीजें मिलेंगी कि यार अच्छा मेरे पेरेंट्स ने ये या मेरे डैड ने ये रिग्रेट किया, I should not repeat it, I should not regret this, so let me not fall into the same trap. Correct. So ये तो एक बुक तो लिखनी मिलती है। नहीं, कई बार यानी we were talking the other day, one more topic you suggested कि लोग क्या कहेंगे, तो मेरे लिए वो रिग्रेट कभी नहीं आया कि मैंने वो लोगों का कभी सुना नहीं है, मेरे घर वालों ने भी मेरे को ऐसा कभी बोला नहीं कि हाँ लोग क्या कहेंगे, तुझे करना है तू कर। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि अगर आपने बिजनेस नहीं किया पर आपका बच्चा करना चाहता है, सपोर्ट हिम, he might become an ex Ambani, you never know. so ये हाँ, और वो फेलियर भी हो सकता है, तो सपोर्ट हिम इन दैट एज वेल। yes so लोग क्या कहेंगे, now that you have brought this topic up, इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। So एक टाइम होता था कि so when I was a kid, as a young boy, I was very introvert and not very confident. So my father's brother, मेरे चाचा जी, he one day he came to me and he noticed, and he really loves me, I know it. So at that, because he saw that I'm budding and I need to really level up my game because from what I am. तो उसमें दो चीजें उन्होंने मेरे को बोली थी। उन्होंने एक चीज बोली थी, देख बेटा, पहले तो बुलाया, इधर आ मेरे पास। मैंने कहा हाँ जी अजय, क्या मैं तेरे को दो चीजें बताऊंगा आज। तो पहली चीज बोली थी कि भाई डैश में सभी डैश है, मतलब हमाम में सब डैश है, ठीक है। ही वाज लाइक कि तू ज्यादा कॉन्शियस मत हो, डोंट बी एन इंट्रोवर्ट, डोंट थिंक कि दूसरा क्या कर रहा है, बिकॉज हमाम में सब डैश है। तो दैट रियली हिट वेरी हार्ड ऑन मी। मैंने कहा अच्छा, दैट्स अ गुड पॉइंट। और दूसरी जो उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी, वो ये था कि कभी भी, सो आई नेवर यूज्ड टू मेक आई कांटेक्ट, सो आई वाज शाय, आई वाज आल्सो वेरी शाय काइंड ऑफ अ बॉय। सो ही सेड कि आंखों में आंखें डाल के दिखाकर कोई नोच नहीं लेगा। नहीं, बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एक्चुअली ना, आप जब आई कांटेक्ट बनाते हो ना, तो योर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप वेरी हाई। हाँ, इवन सामने वाला भी आपके लिए एक अलग लेवल पे ये सोचता है कि हाँ, दिस गाय हैज दैट गट्स टू सी आई टू आई। तो उसके लिए भी आपका रिस्पेक्ट बढ़ जाता है व्हेन यू मेक आई कांटेक्ट। तो हाँ, यू कैन मेक दैट कनेक्शन, राइट? अदरवाइज लगता है कि यार अगला बंदा टाइम पास कर रहा है, चल जाने दे इसको। ये आपका एक कॉन्फिडेंस शो करता है। जब आप आई टू आई कांटेक्ट बनाते हो तो सामने वाले को लगता है ही इज वेरी कॉन्फिडेंट गाय, वो अपने जो भी बात कर रहा है वो एकदम अच्छे, उसको पता है, ही इज वेरी नॉलेजेबल ऑन दैट पार्ट। सो इट्स अ रियल गुड ट्रेट। या तो वो हमेशा होना चाहिए। यानी इवन इन बिजनेस आई लर्न दिस कि जब आप कोई डील करने जाते हो, तो जब आप आई टू आई कांटेक्ट करते हो, तो आपके डील होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
क्योंकि सामने वाले को लगता है कि हाँ ये बंदा काफी कॉन्फिडेंट है, और कॉन्फिडेंट है, उसको एक ट्रस्ट intent ठीक है। उसको एक ट्रस्ट बैठ जाता है आपके ऊपर कि हाँ ये जो भी बात कर रहा है वो, क्योंकि क्या होता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि आप आई टू आई कांटेक्ट कब नहीं करते हो, कि जब आप थोड़ा सा नर्वस हो या आप कुछ छुपाना आपको चाहते पता नहीं है, हो, हाँ हाँ, आप कुछ कुछ छुपाना आप चाहते जानते हो, नहीं हो हाँ, चीजें। और हाँ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, कि आपको लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो। सो दैट इज वन थिंग इन आई हैव सीन, इट्स लाइक मेरे कॉलेज में भी बहुत लोग ऐसे थे जो दे आर नॉट वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, बट देयर दिस ट्रेट्स आर वेरी हाई। वो बात करते थे तो ऑलवेज आई टू आई बात करते थे। एंड टू टेल यू दैट अभी की डेट में मेरी कॉलेज में जो टॉपर्स थे उनसे ज्यादा बेटर पोजीशन पे ये लोग बैठे हुए हैं, who has this trait. So this is very important. आप एक बिजनेस भी करने जा रहे हो तो ये बहुत बहुत मैटर करता है ये चीज, कि आप कैसे उस अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप कितना कॉन्फिडेंट शो कर सकते हो। सो यस, आई एग्री ऑन योर अंकल्स थॉट कि आंख से आंख मिला के ही बात करो, डरना क्यों। डरना क्यों है, कोई निकाल थोड़े ना लेगा। I think even our Prime Minister said in one of his early interviews when he became Prime Minister कि हम ना आँख झुका के बात करेंगे ना आँख उठा के बात करेंगे, हम आँख मिला के बात करेंगे। बिल्कुल, very well. ठीक, but before we end, I just wanted to say to the viewers that हालांकि जिगर की आपने स्टोरी सुनी एंड आपने देखा कि उसके डाउनफॉल्स, जो उसने पैसे लगाए, जितना उसने रिस्क लिया एंड लॉसेस उसने देखे हैं, बट वी वांट टू एंड ऑन अ हाई नोट दैट ही इज डूइंग प्रीटी वेल राइट नाउ, सो वी डोंट हैव टू सो हमको सिर्फ इस चीज से एक सीख लेनी है और मूव ऑन करना है। ज्यादा इस चीज पे सल्क नहीं करना है कि अरे बेचारा जिगर, आई टच वुड, आई विश ही डज इवन बेटर इन हिज लाइफ। एंड द हार्ड ट्रुथ में आज हमारे पास यही एक टॉपिक था जो वी वांटेड टू रियली talk about, and we thought it's going to be interesting and it's going to drive the point home for a lot of folks. So thank you so much, Jigar. No problem. You spent time with me and in the season 2 of the Time Pass Theory podcast, which is also goes by the name of the Hard Truth. So thank you so much. Thank you for having me. Soon. Yeah. Thank you. Most welcome. Thank you. Thanks. Bye. Bye.